Hare Krishna. So welcome all the devotees for this Samskara seminar, 2-day seminar. So sorry for the slight delay in starting the seminar, but I'll just give a very brief introduction to the topic and then I'll introduce the Nilambar Prabhuji. So we see in the Srila Prabhupada's books, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, in various places, Srila Prabhupada tells about the importance of samskaras. So one of the main purpose of samskara is to how to produce good good progeny and how to actually make them into good human beings in a comprehensive all-round manner. We see the Srimad Bhagavatam in one purport, Prabhupada says that when the samskaras are not performed, then the Varna Sankara population increases in the society. And when there is an increase in the Varna Sankara population, how much ever you may put legislation, rules, but there will not be any peace in the society. So samskaras play a very crucial role actually in producing right progeny. And in the third canto of the Bhagavatam, we can see the example about the birth of Hiranyakashipu and Hiranyaksha. They were so demoniac. One of the main reason was that the samskaras were not observed in the birth of Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Although they were actually born of the sons of Kashyapa Muni, who was a great rishi. But because the samskaras were not observed, they became very great demons. But on the other hand, we see in the Bhagavatam that the same Diti and Kashyapa, when Diti was engaged in the performance of Pumsavana sacrifice, although she wanted to get a son who can kill Indra, but because the samskaras were observed, the Maruts were born who became great devotees of the Lord. So in that way we can find various instances in the Bhagavatam where Prabhupada writes about the importance of the samskaras. But of course Prabhuji will actually speak in great detail about the topic. But I just want to introduce His Grace Nilambar Prabhu. Nilambar Prabhu is a disciple of His Holiness Radha Govind Swami Maharaj. And he has been practicing Krishna consciousness more than 15-20 years. And especially for the past 10 years, Nilambar Prabhu is he learnt the samskaras and yajnas from Rohini Kumar Prabhu and other devotees. And Prabhuji was telling that how he would actually practice the mantras repeatedly in the whole night and repeat how to pronounce the mantras properly. He really worked hard and actually how to perform the various samskaras. So for the past 10 years, he has been performing different yajnas, samskaras in Bombay and also various other parts of India. So Prabhuji has done enormous preparation on this topic, and he has also trained other devotees. He is also training other devotees in Bombay. So very grateful that Prabhuji accepted this invitation to come and speak on this topic of samskaras. So without much delay, I would like to invite Nilambar Prabhu. So मैं अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दिया था, पर प्रभु जी हिंदी में बोलेंगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तो सबसे पहले मैं इस प्रांगण में जहाँ पर हम सभी बैठे हैं, वहाँ पर श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सभी यह संस्कार के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उन सभी को शक्ति मिले, बुद्धि मिले, चेतना मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ें. श्री श्री गौर निताय, श्रीनाथ जी गोपाल जी, लक्ष्मी नारायण जी, श्री प्रभुपाद जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है कि वे मुझे बुद्धि प्रदान करें, जिससे मैं आप सभी के हृदय में संस्कारों से संबंधित
उन बातों को उजागर कर पाऊँ। यहाँ के मूल जो प्रेसिडेंट हैं, मंदिर के कई सारे हैं, तो श्यामानंद प्रभु हैं, गौरांग प्रभु हैं और राधा गोपीनाथ प्रभु हैं। उन सभी के चरणों में निवेदन है, विशेषकर हिज ग्रेस राधिका वल्लभ प्रभु जी, जिनकी छत्र छाया में हम लोग ये संस्कार का आयोजन कर पाए हैं। प्रभु जी की बड़ी कृपा हुई मुझ पर। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि क्या आप संस्कारों पर क्लास दे पाएंगे। तो मैंने कहा प्रभु जी मेरी बड़ी इच्छा है, बड़ी कामना है, और प्रभु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझ पर कृपा की, और इस कारण से आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वैसे कक्षा तो प्रारंभ होने का समय था 9:30 बजे, पर क्या करें, कुछ ना कुछ भौतिक संसार हमारे अनुसार नहीं चलता है, भगवान के अनुसार चलता है। तो प्रयत्न तो हमारा पूर्ण रूप से रहता है कि हम सभी समय पर प्रारंभ कर सकें। तो ज़्यादा इन सब बातों पर समय ना लेते हुए हम सीधा अपने ही विषय पर आते हैं। तो संस्कार यह क्या है, इसके विषय में थोड़ा समझते हैं, फिर आगे संस्कार के क्या प्रकार हैं, संस्कार क्यों करते हैं, इसके विषय में सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। संस्कार, संस्कारों के कई शब्द हैं। कोई इसे शुद्धिकरण कहता है, कोई इसे पवित्रीकरण कहता है, कोई इसे आकार देना यानी सही आकार देना इति संस्कारः कहते हैं, और कोई इसे इस संसार से तारने का एक मार्ग समझता है। संसार से निकलने का एक मार्ग है, वो है संस्कार। आप अभी कंपैरिजन में मत लग जाना कि क्या हरिनाम से अलग है क्या, नहीं। ये हरिनाम से और जुड़ने के लिए और सरल मार्ग में भक्ति को और सरलतम बनाने के लिए या भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए यह संस्कार के विषय में हम सुनने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भी मैं विषय बता रहा हूँ, ये विषय भगवान से विरुद्ध नहीं है। पहला तो आप लोग ये मन में ले लीजिए। दूसरा है कि कहीं आपके मन में ऐसी शंकाएं न बने कि क्या प्रभुपाद जी ने ये बोला है, क्या इसकी आवश्यकता है क्या, हमें तो बताया गया है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम ये सब जो सुनने जा रहे हैं, ये क्या आवश्यक है, ये हमें भक्ति में सहायता करेगी? जी हाँ, अवश्य करेगी। श्रीमद् भागवतम स्वयं में प्रमाण है इसका कि गर्भाधान होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, अंत्येष्टि होनी चाहिए। इनके विषय में पूरा श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। आप पहले स्कंद से प्रारंभ कीजिए, तीसरे स्कंद में जाइए, 7वें स्कंद में जाइए, 9वें स्कंद में स्त्री पुरुष के बारे में बताया गया है, और उसके अलावा भी कई सारे स्थानों पर विषय पर जहाँ भी संभव हुआ, जैसे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आपको वानप्रस्थ के विषय में, 7वें 8वें स्कंद में वानप्रस्थ के विषय में भी सुनने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये संस्कार हमारे ग्रंथों में नहीं, हमारे शास्त्रों में है, वेदों में है। और ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार सभी ऋषि मुनियों की स्मृति में रहे हैं। स्मृति क्या होता है? स्मृति शास्त्र सुना होगा आपने। स्मृति का मतलब होता है हमारे अंतरात्मा में स्मरण। तो जो बड़े बड़े मुनि होते हैं, उनकी केवल मन में जो बातें आ जाए, उसी से वह शास्त्र बन जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जी जब रामायण लिखने के प्रारंभ में ही उन्होंने एक बहेलिए को, एक पक्षी को धनुष अपना बाण मार रहा था। वो जैसे ही बाण मारा उस पक्षी को, तो तुरंत
वाल्मीकि जी यह दृश्य देख रहे थे और उनके मुख से कुछ ऐसे श्लोक निकले और वो मन में सोचने लगे कि ये शब्द तो मैंने बोले ही नहीं, कहाँ से आए? तो उनकी स्मृति में आए और स्मृति से उनके मुख से आए और वो चिंतित थे। तो चिंता करते 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 नारद मुनि आके बोले नहीं वो सही है। भगवान भी आके बोले नहीं ये सही है, ये मेरे वजह से आया है तुम्हारे मुख में। तो वैसे जो ऋषि हैं, वेद व्यास जी हैं और हमारे षड गोस्वामी हैं, इन सभी ने इनके विषय में, हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इनकी कृपा से ही ये सारे संस्कार आज वापस से हमें मिल रहे हैं। आज के समय समाज में संस्कारों का नाम ही समाप्त हो गया है। कोई संस्कार नहीं है पूरे समाज में, यदि है भी तो वो एक रूढ़िवादी है या एक प्रचलन है जिसके आधार पर लोग संस्कारों को समझ रहे हैं। इन प्रचलन को, उसके पीछे जो विज्ञान है उसको यदि हम समझ पाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी ये समझने के लिए। तो इसलिए जो संस्कार होते हैं उनके विषयों को गंभीरता से समझना, उन विषयों को समाज में फिर से उद्घृत करना है, लोगों को बताना है, उसके लिए यह एक प्रयास है इस कक्षा के माध्यम से। तो जैसे हमने संस्कार के यह शब्द के नीचे लिखा है, संस्कारेण बिना देहि देवी देह शुद्धि न जायते, अर्थात बिना संस्कार के यह देह की शुद्धि नहीं होगी। देह का शुद्धिकरण केवल संस्कारों के माध्यम से होगा। तो संस्कार हम लोग ने यहाँ पर बताया है कि 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, 3 प्रकार से संस्कार प्राप्त होता है। सबसे पहला है साधु संग, वैष्णव कृपा से संस्कार प्राप्त होता है। दूसरा है अच्छे परिवार से संस्कार प्राप्त होता है। और तीसरा है मंत्रवत विधिवत, जिसके विषय में हम यहाँ अभी चर्चा करेंगे, उनसे भी संस्कार प्राप्त होते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक के विषय में समझ लेते हैं, वैष्णव साधु संग क्या है। श्रील प्रभुपाद उन्होंने अपने जीवन काल में केवल मलेच्छों को या यवनों को प्रचार किया, कोई क्षमता नहीं थी, फिर भी उसके आधार पर यह सब ना देख करके उन्होंने केवल और केवल हरि नाम का प्रचार किया और इस हरि नाम के प्रचार से सभी लोग शुद्ध हो गए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरि नाम के प्रचार से लोगों के साधु के संगति से के कारण लोगों में यह संस्कार भर गए और आज एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की श्री प्रभुपाद जी ने। ये क्या हुआ? ये साधुओं की कृपा से प्राप्त हुई। यदि साधु संत ना हो तो संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बिना संस्कार से रहित हो ही जाते हैं, इसलिए उनका शुद्धिकरण संस्कार से, साधु के संग से हो जाता है। तो साधु की संगति से एक संस्कार होता है। दूसरा है अच्छे परिवार से। अब अच्छे परिवार आज के युग में आपको बहुत कम स्थानों पर ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि राजस्थान का कुछ क्षेत्र है और कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत का कुछ भाग है, जहाँ पर परिवार ही इतने संस्कारी हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं वो स्वयं में खूब संस्कारी बन जाते हैं। उनको लोगों की सेवा करना और लोगों के साथ देना, लोगों का किस प्रकार से सेवा करना, केयर करना, ये सभी यह परिवार से आता है। तो परिवार वाले संस्कार देते हैं, क्योंकि पूरा परिवार यानी दादा परदादा पिता बेटा हर कोई संस्कारी है। हम एक परिवार को जानते हैं, वे उत्तर भारत के हैं। तो वे लोग, जब मैं उनके यहाँ गया था कथा करने, तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि ये जो उनके यहाँ पे सेवक हैं, वो सेवक कई वर्षों से उनके यहाँ सेवा कर रहे हैं, लगभग कुछ 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 40 वर्ष से ज़्यादा हो गया था उनको। तो मैंने कहा आप इतने वर्ष से कैसे सेवा कर पाए?
बोले ये परिवार इतना अच्छा संस्कारी परिवार है, और इस परिवार से भी इनके पिताजी जो थे वो इनसे भी ज़्यादा नम्र और सरल थे। इतने धनी होने के बावजूद इतनी नम्रता, उनके बेटे में भी वैसी नम्रता, बोलते इससे भी ज़्यादा नम्रता थी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे पुण्यात्माएं लोग होते हैं जो बड़े सरल होते हैं, अपने सेवकों से बहुत सुंदर व्यवहार करते हैं, वे अहंकारी नहीं होते, वे सभी को कहते हैं सम्मान देते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने ही लोगों को, अपने नीचे के लोगों को कैसे सम्मान देते हैं, वे जो खाते हैं, वे जो पाते हैं भोजन में, वही अपने सेवकों को भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग बनेगा, आपके लिए अलग बनेगा। और जैसे उनको रहने की सुविधाएं होती हैं उससे थोड़ा सा कम, लेकिन लगभग वैसा ही उनको भी शयन कक्ष उनका वैसा ही होता है, और सोने के लिए भी जो भी आवश्यकता है, जो भी उनके रहने की आवश्यकता है, उनको एज इट इज़ वो लोग प्रदान करते हैं। तो ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि परिवार इतने संस्कारी होते हैं। वो पति, कोई भी कैसी भी परिवार की अगर पत्नी, उनकी जो घर में बहू आती है, उसको वो लोग अपने संस्कारों से, उसको प्रेम से इतना अच्छे से उसको रख लेते हैं कि वो बहू स्वयं उनकी कहते हैं ना, बड़ाई करती रहते, थकती नहीं है। वो बोलती मेरी सास ऐसी है, बोलती मेरी ननद ऐसी है, मतलब सबकी अच्छाइयाँ गिनाएगी वो। हाँ, नहीं तो ऐसे ऐसे परिवार होते हैं कि लोग जाते ही पहले पूछते हैं सास कैसी है ना। किसी का विवाह हो जाए तो कोई पहला प्रश्न आकर के यही करता, तुम्हारी सास कैसी है। सास वो जो बहू को सास ना लेने दे। लेकिन लेकिन जो अच्छे संस्कारी, कहते हैं ना, जो कुल संस्कारी हो, उसमें कोई भी स्त्री जाए, कोई भी बच्चा जाए, उसको संस्कार मिल जाएगा। तो ऐसे परिवार में जन्म लेना भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ धन हो या ना हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लोग में स्वयं में इतने संस्कार भरे होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना 4 नियम पालन करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है। तो ये पुण्यात्मा में है ही नहीं, तो आप इनको अगर प्रचार करना हो तो कैसे करोगे। बोलोगे ये रूल नहीं है, तो बोलेंगे ये तो हम करते ही नहीं। बोलेंगे चाय भी नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते, कांदा लहसुन नहीं खाते, नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते। तो इनको जब हम प्रचार करने जाते हैं कि बस आप हरि नाम का जप कीजिए, तो उनके जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े कठिन हो जाते हैं। अगर वो हरि नाम में सरेंडर नहीं हो, उसमें शरणागति नहीं ले रहे हैं, तो उनको कठिन होता है प्रचार करना, क्योंकि ऑलरेडी वो संस्कारी है। पर जितने संस्कारी लोग होते हैं वो बहुत साधारणतः हम मान लेते हैं, और अच्छे लोगों का अच्छाई यही है कि वो अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं। यही अच्छे लोगों की अच्छी क्वालिटी, अच्छा गुण होता है। तो जो सरलतम लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, इनमें भी जन्म लेना, इनमें भी संस्कार ये लोग अपने बालकों को दे देते हैं। तीसरा है मंत्रवत विधि। अब ये जो हमारा विषय है, इसी पर हमारी पूरी कक्षा चलेगी। मंत्र क्यों चाहिए, मंत्रवत विधि क्यों चाहिए? क्योंकि हम में ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम मंत्र के आधार पर मंत्र को उच्चारण करके हम शुद्धिकरण कराएं। मंत्र ऐसा है, मंत्र शब्द का ही अर्थ है मन तारयति इति मंत्र। जो मन को तार दे उसी को मंत्र कहते हैं। तो जो मंत्र उच्चारण होता है, तो जो वेद मंत्र उच्चारण होते हैं, तो उनके श्रवण मात्र से शुद्धि हो जाती है। श्रवण मात्र से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को लगता है जब वे पूजा करने बैठते हैं ना, मंदिरों में या घर में यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तो एक कान पे फ़ोन लगाएंगे, मैसेज छोड़ते रहेंगे, और एक साइड आहुति देते रहते हैं। उनको लगता है आहुति दे रहे हैं ना, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, श्रवण इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जितना श्रवण करेगा उतना ही शुद्धि होगी। जैसे जो बच्चे, कृपया अपना मोबाइल साइलेंट कर ले, सबके मोबाइल बज ही रहे हैं कब से, मैं भी देख लूं। तो श्रवण जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब छोटा बालक
कक्षा में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में उसको लिखना, पढ़ना, रटना इत्यादि क्रिया दिया जाता है और वह शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन जैसे जैसे वो उन्नति करता है अपने जीवन काल में, उसके लिए श्रवण ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप जैसे आज के युग में विश्वविद्यालय में जाएंगे या विद्यालय में जाएंगे, कॉलेजेस में, तो वहाँ आप देखते हैं कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जो कॉलेज में आ गए हैं, उनको लिखना पढ़ना का काम इतना नहीं दिया जाता। उनको केवल श्रवण का कार्य दिया जाता है कि आप खूब श्रवण कीजिए। उस श्रवण से क्या हो जाता है, उनको डिग्री मिल जाती है उसी श्रवण के माध्यम से। तो सुनना इतना महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े प्रोफेसर आके मोटी मोटी फीस लेते हैं केवल शब्द सुनाने के लिए, और वो शब्द सुना करके लोगों को वे ज्ञानी बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, सीए बना देते हैं। ये लिखना तो कार्य है ही, लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, श्रवण करना। तो ये जो मंत्र है, ये श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण आता है। मंत्र को जो गर्भवती स्त्री होती है तो उसके लिए जो विधान किए जाते हैं वो मंत्र के आधार पर किए जाते हैं। तो जो मंत्र होता है वह, चूंकि अभी बालक का शरीर निर्माण भी नहीं हुआ है, तो भी उस बालक के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं। जब उस रूम में आएगा, जब उस गर्भ में आएगा, उस स्थान पर आएगा वह बालक बालिका, तो उसका शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है श्रवण कि जितना व्यक्ति सुनते जाएगा उतनी ही उसकी शुद्धि होगी। इसलिए मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इनके विषय में हम आगे सुनेंगे, अभी इसके ऊपर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा स्लाइड देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी महापुरुष, स्वयं भगवान और बड़े बड़े राज ऋषि, ये सभी यहाँ पर इनको हमने स्थान दिया है। ये हमारा चित्र जो है, इसमें सब और भी लोगों को समाना था, जगह नहीं बची, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम और लोगों को भी डाल सकें। तो आप ये सब आप देखें ध्यान से। इसमें भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, श्री राम, फिर गुरु परंपरा, सभी बड़े बड़े आचार्य, इनके वजह से आज हमारे संस्कार, आज हमारे धर्म बचे हुए हैं। तो ये लोग अपने जीवन काल में ऐसे ही नहीं आए, इनको एक घर की आवश्यकता है। अभी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी देश से मुंबई में आना चाहे और मुंबई में उसको मुंबई आने से पहले वो पहले घर या होटल बुक करता है, फिर वहाँ पर बात करके क्लियर रखता है कि भाई मैं आऊँगा तो ऐसा ऐसा है, इतने दिन रुकूंगा, ये है। तो उसके लिए पहले बुकिंग होती है, फिर वो आदमी आता है, फिर वहाँ समय तक रहता है। वैसे ही बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत पवित्र आत्माएं हैं, उनको भगवान भेजना चाहते हैं कि वे संसार का कल्याण करें। उनको बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आकर के आज भी धर्म के कार्य के लिए, देश के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। देखिए, कुछ तो बद्ध आत्माएं आती हैं, लेकिन कुछ जो आती हैं वो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, जिनको भगवान उनको कृपावश भेजते हैं। तो वे किस घर में आएंगे, कौन से घर में आएंगे? वो ऐसे घरों में आएंगे जिस घर में उनके संस्कार होंगे, उनके माता पिता वैसे होंगे कि वे ऐसे घरों में उनको रख पाए। अब जो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को हम लोगों ने सुना है, तो उनके पिताजी श्रीमती राधा रानी के भक्त थे और श्रीमती राधा रानी से वे सदैव प्रार्थना करते थे और भक्तों को अपने घर भोजन कराते थे, साधु संतों को, और उन सभी को क्या कहते थे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर श्रीमती राधा रानी का भक्त प्रकट हो, ऐसे प्रार्थना करते थे। तो श्री प्रभुपाद जी स्वयं मुक्त आत्मा हैं, लेकिन उनके प्राकट्य के बाद भी
उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी लीलाएं के आधार पर हमको लगता है कि अरे ये तो साधारण व्यक्ति थे लेकिन इतने बड़े हो गए, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति होता ही नहीं। तो ये जितने भी आप देखते हैं, जिसमें हमने आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, चाणक्य पंडित, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, ये सभी लोगों ने क्या किया, इनके माता पिता इनसे महान थे। ये महान हैं लेकिन इनके पिता इनसे महान थे। उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनके हृदय में जो लोगों के प्रति प्रेम भाव बहुत बड़ा था। इसलिए भगवान ऐसे लोगों के लिए उनको उस घर में प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों के घर में। अब आज के समय में अगर किसी को शुद्ध भक्त चाहिए, कोई महान साधु को प्रकट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले उनको वैसा निर्माण करना होगा, स्थान, घर इत्यादि। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आजकल की परिस्थिति ही ऐसी नहीं है। चरित्र ही इतना अशुद्ध है कि कहाँ से कोई महात्मा जन्म लेगा। जब हम किसी को शिक्षा देने बैठें तो आजकल के बालकों से, क्योंकि गर्भाधान संस्कार ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, तो उनको संस्कार देना ये दूसरा चैलेंज होता है, दूसरी चुनौती होती है। उनको भी अगर मान लीजिए वो संस्कार में आ भी गए तो भी उनकी जो आंतरिक चेतना है वो इतनी जल्दी शुद्ध तो नहीं होगी। तो इसके लिए इन सभी जैसे महापुरुषों को यदि हम इच्छुक भी हैं तो भी हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मंत्रबद्ध विधि करानी होती है, क्योंकि ये कैपेसिटी, इसका कहते हैं ना, हमारे अंदर वैसी योग्यता नहीं है, पर वो योग्यता को निर्माण करने के लिए ही हमें संस्कार कराने की आवश्यकता है। इसलिए जो बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में, उनके माता पिता उनसे महान रहे। वे लोगों में सदैव अच्छी चेतना का, जैसे माधवाचार्य, उनके पिताजी, जिस समय आदि शंकराचार्य का इतना प्रचार था कि लोग निराकारवाद को खूब मानते थे, लेकिन माधवाचार्य के पिता उस समय भी साकार का, भगवान साकार है इसका प्रचार जोरों शोरों में करते थे। और कोई भी अगर आकर के उनके आगे अगर तर्क वितर्क भी करता था तो भी माधवाचार्य के पिता उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो माधवाचार्य आए। कौन आए? माधवाचार्य, जो सबसे शक्तिशाली, वो दिखने में भी हष्ट पुष्ट और उतने ही बोलने में भी और उतने ही ज्ञानी, बुद्धिमान, तेजस्वी, स्वयं पवन पुत्र के अंश हैं, पवन के अंश हैं, वायुदेव के। तो अब ये जो महात्माएं प्रकट हो रहे हैं, ये कौन है? ये कोई साधारण जीव नहीं है, लेकिन इनके पिता में वो तपस्या करने की क्षमता रही, उनकी माताओं में वो तपस्या करने की क्षमता रही, इसलिए इनके पास ऐसी, इसलिए ये महात्मा ऐसे प्रकट हुए। इसलिए जैसे शतरूपा और स्वयंभू मनु, इन लोगों ने, जब ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया तो इनको कहा कि तुम मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, बच्चों को जन्म दो, विवाह करा दिया, जाओ जल्दी से बच्चों को जन्म दो। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम हनीमून जाते हैं। कहाँ जाएं? माथेरान, कहाँ जाएं? तो ऐसी ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहे थे वो लोग। वे लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे कि नहीं, पहले हम तपस्या करेंगे। तो उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या के बल पर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। और जब भगवान प्रकट हुए तो वे भगवान को क्या कहते हैं कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला, यहाँ वहाँ देखा, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे लिए तपस्या की। इसलिए जो भक्त चाहते हैं कि उनके घर में ऐसे शुद्ध भक्त आएं, वे चाहते हैं कि उनके घर में ऐसे महात्माओं का प्राकट्य हो, तो पहले क्या करना होगा? तपस्या, दिव्य तपस्या। तपस्या साधारण मत कीजिए, तपस्या को सस्ता मत बनाइए। बिना सोने को पिघलाए, या कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही मूल्यवान हो जाता है। हीरा को जितना तराशा जाता है वो उतना ही मूल्यवान हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जितना अधिक तपस्या करेगा, जो व्यक्ति जितना अधिक भगवान की सेवा में और
धर्म की सेवा में अपने को लगाता है, उसके घर में वैसे ही महात्मा जन्म लेते हैं, साधारण लोग नहीं आते। और मैं आपको मेरा अनुभव बताऊं 10 वर्ष का, कि इतने वर्षों से हम लोग संस्कार कर रहे हैं, हमने देखा है कि जिनके माता पिता सदैव सेवा में तत्पर रहे ना, उनके बच्चों का प्राकट्य, मतलब प्राकट्य तो नहीं बोल सकते अभी तो नहीं बोल सकते, तो उनका जन्म जो हुआ है, वे जन्म इतना सुंदर रूप से होता है, बड़े पुण्य तिथि पर होता है। और उसके अलावा जब उनका जन्म भी होता है तो बहुत सारे उसमें सुंदर सुंदर नक्षत्र, तिथि, वार इत्यादि जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे चीज़ों से संबंध बना रहता है। ये सब केवल और केवल माता पिता की तपस्या और सेवा का फल है। जितने तपस्याएं होंगी, जितनी खूब कठोर तपस्या लोग करेंगे, उतने ही अच्छे बच्चों का जन्म होगा। जैसे हम लोग एकादशी करते हैं, निर्जला उपवास करना। हाँ, अब ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो मत कीजिए, थोड़ा आराम से कीजिए, क्योंकि हम लोग वो विचारधारा के लोग हैं कि सेवा महत्वपूर्ण है, साधना महत्वपूर्ण है, तपस्या उसके लिए है। पर मैं आपको ये संस्कारों के विषय में बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि तपस्या से पीछे मत हटिए। सुबह उठ करके मंगला आरती करना, 16 माला जप करना, ये सब नियम होना ही चाहिए। भागवत पढ़ना, ये नियम होना ही चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं केवल 16 माला कर लेता हूँ, 24 घंटे में एक आध 2 बार मैं 16 माला कर लेता हूँ, तो यह ठीक नहीं है। ऐसी साधना कुछ काम की नहीं है। वो ठीक है, हरि नाम लेंगे उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कोई अगर अपने आप को ये समझ रहा है कि वो बस 16 माला कर रहा है और भगवान उसकी सारी बातें सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। और श्री प्रभुपाद जी ने सिर्फ 16 माला करने के लिए नहीं कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम आप 16 माला कीजिए। ये बात आप हमेशा याद रखिए, कम से कम 16 माला करने के लिए कहा है। तो जितना अधिक हम तपस्या में अपने आप को लगाएंगे, जैसे सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 3-4 बजे उठना, ये साधारण नहीं है। और रही बात नींद की कि प्रभु जी हम तो बहुत थक जाते हैं, प्रभु जी हम लोग बहुत काम करते हैं, हमारे पास समय नहीं मिल पाता, तो ये केवल और केवल एक्सक्यूज है, इसे एक्सक्यूज कहते हैं। हाँ, ये 100% ये बात सच है। कोई कहता है ना कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं कि वो उसका मतलब है वो आलसी है और कोई कारण है। अच्छा, तो कोई कहेगा अरे प्रभु जी हम रात को 10 बजे 11 बजे ऑफिस से आते हैं, फिर सोते हैं, फिर हमें उठते हैं, तो उसके बाद हम अपना कार्य करते हैं। तो एक बार हमारे शिक्षा गुरु ने जपा सेशन में ये बात कही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान से सुनिए। एक बार भक्तों ने, बहुत जपा सेशन चल रहा था कि इसमें बता रहे थे कि प्रभु जी हम सुबह नहीं जप कर पाते, हम रात में करते हैं, हम ट्रेन में करते हैं, हम बस में करते हैं, बिकॉज हमारा जॉब ऐसा है, हमारा काम ऐसा है। तो पता है उन्होंने क्या वर्ड कहा? चेंज योर जॉब। क्यों? क्योंकि ये जीवन मिला है 16 माला जप करने के लिए, ये जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। और अगर हम लोग भक्ति छोड़ करके बाकी सब चीजों में लग जाएंगे तो फिर ये जीवन का अर्थ ही क्या है? तो नहीं प्रभु जी, वी आर प्रैक्टिकल, हम लोग 16 माला ट्रेन में भी तो कर सकते हैं ना प्रभु जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ट्रेन में खाएंगे अच्छा लगेगा? आप ट्रेन में सोते हैं तो नींद पूरी हो जाती है क्या? नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक आप बैठ के 16 माला नहीं करेंगे, वो क्षमता ही नहीं आएगी, वो चेतना ही नहीं डेवलप होगी, विकसित ही नहीं होगा। तो कैसे आप उसको जजमेंट ले लेते हैं कि तो हाँ नियमे न कालः, है ना, उसके ऊपर तर्क आ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों में एक ऐसी भावनाएं जुड़ जाती हैं कि थोड़ा सा ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान को अपने कंफर्ट में हम जोड़ते हैं, उसे निकालिए अंदर से। ये साधना तपस्वी आपके सामने ये जो फोटो दिख रहे हैं, कोई साधारण लोग हैं? इनमें से ऐसा कोई एक व्यक्ति का नाम बताए जिसको स्ट्रगल नहीं मिला हो? बताइए कोई एक आदमी का नाम, एक भी फोटो। चलो ये नहीं भी हो, आपके पास कोई हो तो आप बताइए नाम, कि हाँ वो आराम से ऐसे सोते थे, उठे, हरे कृष्णा बोले, भगवत धाम चले गए। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए। तो आप क्यों सोचते हैं कि मुझे इतना स्ट्रगल है इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं? ऐसा है ही नहीं, भगवान ने ऐसा बनाया नहीं हम लोगों को। बिना तपस्या किए ये संस्कार का कोई अर्थ नहीं है।
अगर मैं यह संस्कार के विषय में बता रहा हूं लेकिन तपस्या के बारे में नहीं बता रहा हूं तो ये पूरा क्लास, ये पूरी कक्षा व्यर्थ है, क्योंकि हम सस्ते में महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं। हाँ? लोग कहते हैं प्रभु जी डायमंड मिलेगा, नकली मिलता है क्या, चलेगा क्या? ये नकली डायमंड असली में काम करेगा क्या? जैसे किसी का शुक्र कमजोर हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसको कहा जाता है कि आप हीरा पहनिए। तो कुछ लोग कहते हैं अरे हीरा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग उनकी चेतना देख के बोलते हैं ठीक है अमेरिकन डायमंड भी पहन लो जो नकली आता है 5,000 में आता है। अब वो असली डायमंड खरीदेगा तो 2 लाख रुपए का आएगा। तो वो पहनने के बाद बोलता है प्रभु जी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ज्योतिष भी बोलता है कि जैसा खर्चा करोगे वैसे ही काम करेगा ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सस्ते में महान कार्य नहीं कर सकते, मत सोचिए ऐसा। आप 100 रुपया दे करके 10,000 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकते। और जहां ऐसा लिखा रहता है ना कि आपको फ्री 1 रुपीज में मिलने वाला है, तो नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ऐसी चेतना में मत जाइए, ऐसी सोच में मत पड़िए कि हम सस्ते में हम महापुरुष को घर में बुला लेंगे। कुछ लोग हमको बोलते हैं प्रभु जी इतना अच्छे से यज्ञ कर दीजिए आप कि बहुत मजा आ जाए जीवन में। अरे कभी सुबह तो उठ जाओ सूर्योदय के पहले, तो देखो जीवन में कैसे आनंद आएगा आपके। नहीं उठना है उनको तपस्या ही नहीं करनी है, उनके जीवन में लक्ष्य ही नहीं है तपस्या का। और बिना तपस्या के आपको ये जो मैं पूरी साधना, हरे कृष्ण, तो चूंकि हम यह सभी तपस्या के विषय में सुन रहे हैं, तो तपस्या यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या होनी चाहिए। और दिव्य तपस्या से ही महात्मा घर में प्रकट होंगे, सस्ते में नहीं प्रकट होंगे। सुबह सूर्योदय के बाद उठ करके 16 माला करने से घर में आपके क्या कह सकते हैं आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य नहीं आने वाले। आप सोच रहे हैं कि षड गोस्वामियों के जैसे महात्मा हमारे घर पे प्रकट हों जो धर्म का प्रचार करें, खूब सेवा करें। नहीं, मिलेंगे लेकिन वो नहीं मिलेंगे आपको। कुछ अच्छे मिलेंगे, लेवल तो अच्छा होगा ही। अब कोई कहे कि फिर हमने जो किया व्यर्थ है, क्या व्यर्थ नहीं है। हर चीज, जो भी क्रिया, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता। जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। तो हम जो भी क्रिया, जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। पर हमें ये बात भी सदैव इसे याद रखना चाहिए कि जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम स्वरूप फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए जिस प्रकार के हमारी चेतना होगी उसी प्रकार हमें वैसे ही भक्त मिलेंगे, वैसे ही भगवान के भक्त मिलेंगे, वैसे ही महात्मा हमारे घर प्रकट होंगे। अब जैसे किसी की चेतना है कि मैं समाज में क्षत्रियता के कार्य करूं, यानी राजाओं के जैसे कार्य होते थे। राजा लोग क्या करते थे, धर्म का रक्षा के लिए युद्ध करते थे। तो अगर आज की ऐसी किसी की मानसिकता है और उसकी पत्नी की भी ऐसी मानसिकता है तो उसके घर में ऐसा ही पुत्र या पुत्री जन्म लेंगे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मैंने कहा ना इस फोटो में मैं बहुत कुछ डालना था, समय नहीं, इसमें जगह नहीं बचा और हमें 2-4 पीपीटी इसके ही नहीं बनाने थे, इसके लिए हमने एक में ही इसमें जोड़ा। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, ऐसी बहुत सारी, केवल एक रानी लक्ष्मीबाई का नाम ही हम लोग सुनते हैं, लेकिन कई ऐसी रानियां रही हैं जिन्होंने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया है, पुरुषों के जैसे या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अच्छा किया है। द्रौपदी वैसी नारी हैं, महारानी कुंती, ये सब कोई साधारण लोग नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में खूब संघर्ष किए। तो इनके माता पिताओं के जीवन में भी इनका भी ऐसा चरित्र रहा है। जैसे पांडु महाराज का चरित्र पढ़िए महाभारत में तो आपको मालूम पड़ेगा कि पांडव कैसे आए। हालांकि वे तो मंत्र के द्वारा आए, लेकिन उसी पिता के अंडर में क्यों, अपने आप को पांडव क्यों कहने लगे? सोचिए ना, अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपने दिल के, अपने बोलते हैं ना कपड़े के ऊपर लोगो लगा के किसी कंपनी का घूमता है तो इस कंपनी का वैल्यू बहुत बड़ा है ना।
तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज, भीम पवन के अंश, अर्जुन इंद्र के अंश, ये लोग सब महान महान व्यक्ति, ये लोग टैग लगा रहे हैं मैं पांडव पुत्र हूं। कैसे? वाई? क्यों? क्योंकि पांडव महाराज ऐसे थे। जो पांडु महाराज थे वे इतने तेजस्वी और तपस्वी थे। तो इसी प्रकार कोई भी महात्मा जब प्रकट होता है तो उसके माता पिता वैसे ही होते हैं। जब भगवान अभी भविष्य में कल की अवतार लेंगे तो आपको क्या लगता है कैसे लेंगे? ये धर्म का तो लोप होने लगेगा, लेकिन धर्म कहीं ना कहीं बचा होगा। कलयुग के अंत में भी धर्म बचा होगा, तभी भगवान आएंगे। तो ये जो संस्कार है ये इन्हीं के लिए है। जो लोग तपस्या करेंगे, दिव्य तपस्या करेंगे, और अपना जीवन को साधारण मत बनाइए। जीवन साधारण बनाने के लिए नहीं है। मैं हमेशा बताता हूं, ये दो कान के बीच में एक मणि जड़ा है भगवान ने, ये इसको मणि कहते हैं हम लोग। दो कान के बीच में एक मणि जड़ा हुआ है। इस मणि से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ। लेकिन इस मणि से हम केवल यही सोचते रहते हैं, अरे इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे साथ ये किया है, मैं ये बदला अवश्य लूंगा। बस इसी में पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। बुराई करते करते, लोगों की गलतियां देखते देखते, किसमें कमियां नहीं हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत शुद्ध मिला है आज तक? जो भी व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, आयु में बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, बताइए आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति मिला है जो 100% उसमें कोई कमी नहीं हो? बताइए कोई एक व्यक्ति है ही नहीं कोई ऐसा। क्योंकि जो भी यहाँ आता है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो वो कमी देखने से हमारी बुद्धि तो वैसे ही रह जाएगी। पर ये जो लोग हैं, ये जो महात्माएं प्रकट हुए, इनके माता पिता ने इन सब से आगे सोचा। इन लोगों ने सोचा कि हमारे घर कैसा व्यक्ति आए। इनकी माताओं ने सोचा कि कैसे हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें कि वो धर्म की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, भगवान की सेवा करें। इसके बारे में उन्होंने विचार किया और इसलिए ऐसे महान पुत्र जन्म लिए, महान पुत्रियों ने जन्म लिया। तो इस प्रकार यह गर्भाधान संस्कार में, क्षमा कीजिए, यह संस्कार जो है ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा आज हमारे समाज में, उसी के आधार पे हम सब ये संस्कार के विषय में सुन पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो 84 लाख योनि है मनुष्य की। 84 लाख योनि में से कहते हैं 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, और उनमें भी कोई एक व्यक्ति होता है जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। कोई एक जीव होता है जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है 84 लाख योनि घूमने के बाद। तो यह जो श्लोक आप देख रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ ही यही है कि ये जो वैदिक संस्कार है, यह संस्कार, यह जो संस्कार है, यह इसी जीवन को शुद्ध नहीं करेगा, आपके आने वाले जीवन में भी ये आप पर कार्य करेगा। तो हम केवल इधर एक समय के लिए बात के लिए नहीं कर रहे हैं, एक समय के लिए इस कक्षा नहीं दे रहे हैं, ये उतने दूर के लिए कर रहे हैं कि जब हमारी मृत्यु भी हो जाएगी, फिर हमारा कहीं जन्म होगा, तब तक भी ये संस्कार हमारे साथ जुड़े होंगे। देखिए, बुरे संस्कार कैसे जुड़े रहते हैं, वैसे ही अच्छे संस्कार भी जुड़े ही रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। अगर आपके लिए किसी ने मंत्रवत विधि की है, आपके लिए किसी ने कुछ यज्ञ इत्यादि कराया है, आपके लिए किसी ने मंत्र पढ़ा है, तो साधारण नहीं है, वो फ्री, वो बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके लिए कार्य करेगा ही करेगा। चाहे आप उसको सुने नहीं सुने, लेकिन वो कार्य आप पर करेगा। यही तो मंत्र की शक्ति है। वैदिके कर्म भी पुण्य निषेका द्विजन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावना प्रत्यचय च। ये पावन कर देता है हमारे कार्य को और हमारे शरीर को। तो इसके लिए यह संस्कार, यह इतना महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे अगले जन्मों तक के लिए हमारे पर कार्यरत रहता है।
तो आइए अब हम समझते हैं संस्कारों के विषय में। संस्कारों की संख्या, प्रभु जी थोड़ा साउंड, हरे कृष्ण। अच्छा, मुझे नहीं, मुझे कम लग रहा है। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो संस्कारों को गुह्य शास्त्र और स्मृति शास्त्रों में बताया गया है। जैसे पारस्कर गुह्य सूत्र है, फिर उसके अलावा सांख्यायन है, कई सारे सुश्रुत संहिता है, मनुस्मृति में है, कई सारे स्थानों पर इन संस्कारों के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। वेदों में भी काफ़ी सारे स्थानों पर कई कई संस्कारों का ऐसा कोई डिटेल में एक जगह नहीं लिखा हुआ है। कुछ संस्कार के विषय में यहाँ लिखा है, कुछ संस्कार के विषय में वहाँ लिखा है, ऐसे करके संस्कारों को लिखा गया है। तो इसलिए ये जो सारे संस्कार हैं, इन सभी संस्कारों में हम सभी इन संस्कारों की संख्याओं को समझते हैं कि इसमें 48 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। फिर अंगिरा ऋषि ने 25 प्रकार के संस्कार बताए हैं। फिर वेदव्यास जी ने 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं। और जो मैंने यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं, ये ग्रंथ है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा रचित सतक्रिय सार दीपिका नामक ग्रंथ है, जो अंग्रेजी में उपलब्ध है हमारे इस्कॉन मंदिरों में। उसमें 10 नाम संस्कार के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो उन संस्कारों के विषय में जितना हम सुनते या जानते हैं, जितना हमारे लिए लिखा गया है, वो केवल 10 संस्कार ही है, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ उप संस्कार में भी गिनती है, लेकिन उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हैं कि ये 25 प्रकार के संस्कार क्या है, 48 प्रकार के संस्कार क्या हैं। देखिए, संस्कार का मतलब केवल जन्म देना इतना ही नहीं कि उसके लिए कुछ यज्ञ इत्यादि करना। उनके लिए कई बार विधिवत विधियां होती रहती हैं। वो विधि जितनी होती जाएगी उसके ऊपर एक एक संस्कार होगा। जैसे बच्चा जब भूमि पर बैठता है, छोटा सा बच्चा जब भूमि पर बैठता है तो उसको भूमि उपवेशितः ऐसा एक संस्कार का नाम बताया गया कि वो भूमि के ऊपर बैठता है, कि भूमि पे बैठने का भी एक संस्कार है। अब ये संस्कार कोई करने वाला कहा जाए कि चलो कराओ, तो बोलेगा प्रभु जी अभी ये भी कोई संस्कार कराने का बात है ना। बच्चा जब अन्न ग्रहण करता है तो उसके लिए अन्नप्राशन तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या वो भोजन कर पा रहा है, वह और भी कुछ जैसे जो जो क्रिया कर पा रहा है उसके लिए भी उसको एक संस्कार में जोड़ लिया जाता है। तो ऐसे करके 48 प्रकार के संस्कार हैं। 48 भी नहीं है, 108 भी कहीं कहीं लिखे गए हैं। हमने तो जिसके बारे में जितना सुना है उसमें से 48 ही है। फिर 25 है अंगिरा ऋषि के द्वारा। तो अभी हम 16 संस्कार के विषय में सुनेंगे। तो अच्छा, कुछ लोगों के मन में अगर कुछ प्रश्न वगैरह आ रहे हैं तो आप लोग चिंता ना करें, हम आपको अवसर देंगे। अगले 1 घंटे हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो मैं उस विषय में आपको जो भी आपके प्रश्न रहेंगे मैं उसे अच्छे से लूँगा। तो आप लोग चिंता ना करें, आपके जो भी मन में प्रश्न होंगे कृपया आप उसे लिख करके रख सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर हम उन प्रश्नों को लेंगे तो विषयांतर हो जाता है और फिर हम जो चीज़ बताना चाह रहे हैं आपके मध्य में जो विषय पे, वो फिर छूट जाता है। तो इसके लिए आप लोग मुझ पर कृपा रखिए और अपने प्रश्नों को अपने पास रखिए। हम एक एक का प्रश्न अवश्य लेंगे और प्रश्न उत्तर बहुत आवश्यक है, इसलिए हम आप किसी को ऐसा नहीं करेंगे कि हम छोड़ेंगे, सारे प्रश्न लेंगे। तो इन संस्कारों के नाम हैं, 16 प्रकार के संस्कार हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। तो यह पूरा हमने 16 संस्कार लिखा है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे आचार्य ने 10 लिखा है, मैंने 16 क्यों लिखा है? एक्चुअली हमारे आचार्य ने
ऐसे गिनेंगे तो उन्होंने भी 16 नाम बताए हैं संस्कारों के, ठीक है। तो आप पहले ये लिख लीजिए अगर आप चाहें तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, ये 3 संस्कार माँ के गर्भ में होते हैं, ठीक है। तो टोटल 16 है ना, तो आप देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। पहले 8 होते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के, मतलब पहले 8 संस्कार जो ऊपर लाइन में हैं, ये संस्कार दोष निवारण के लिए हैं। यानी जो बच्चा इस संसार में प्रकट अभी आया है, जन्म ले रहा है, मुझे क्षमा कीजिए मेरे मुंह में शब्द आ रहा प्रकट प्रकट, जन्म ले रहा है, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रहा है ना, तो प्रकट प्रकट का आदत पड़ रहा है। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति का जन्म होता है, वो उसके 8 संस्कार जन्म के साथ साथ हो जाते हैं, और ये तुरंत तुरंत होते हैं कि 3-3, 4-4 महीने में संस्कार होते हैं, एक एक संस्कार। और बाद में 8 संस्कार समय समय पर होते हैं, यानी जब 5 वर्ष हो जाए तब एक संस्कार, 10 वर्ष में संस्कार, फिर 25 वर्ष में संस्कार, 50 वर्ष में संस्कार, 75 वर्ष की आयु में संस्कार, अंतिम संस्कार, ये सारे ऐसे ऐसे संस्कार हैं। तो पहले 8 संस्कार जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 8 संस्कार के ऊपर ज्यादा प्रचार होता है, अगले 8 संस्कार के ऊपर इतना प्रचार नहीं हो पाता। तो इसलिए ये जो 8 संस्कार हैं ये दोष निवारण के लिए, और अगले 8 संस्कार शुद्धिकरण के लिए होते हैं। तो जिनमें से पहले के 3 संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, यह संस्कार गर्भावस्था में होते हैं। फिर अगला आता है जात कर्म, नामकरण और निष्क्रमण, यह तुरंत तुरंत होता है बालक के लिए, यह बालक की शुद्धि के लिए, और इसमें साथ में अन्नप्राशन और चूड़ाकरण और कर्णभेदन भी आप जोड़ लीजिए, तो यह सब बहुत कम कम समय में हो जाता है। यह सब बालक के अंदर शुद्धि करा करके, और उसके अंदर थोड़े से गुण भरने पड़ते हैं। जैसे नामकरण में थोड़ा सा गुण भी आता है, प्लस शुद्धिकरण होता है। कर्णभेदन केवल शुद्धिकरण के लिए। उसके अलावा जो विद्यारंभ, उपनयन और समावर्तन है, ये हमारे लिए ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान के लिए या ज्ञान को बनाने के लिए, ज्ञान को स्थिर करने के लिए संस्कार कराए जाते हैं। विद्यारंभ, उपनयन और समावर्तन, ये सब ज्ञान के लिए होता है। अगले जो 3 संस्कार हैं विवाह, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो 3 संस्कार हैं ये आश्रमों में प्रवेश करने के लिए है। जैसे उपनयन संस्कार भी आश्रम में प्रवेश करने के लिए होता है, वैसे ये अगले 3 संस्कार हैं विवाह, वानप्रस्थ और सन्यास, ये भी आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है। और अंत में होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। तो इन सभी के विषय में हम विस्तार से सुनने वाले हैं। और ये जो 16 संस्कार हमने लिखे हैं, जिनमें हमारे सतक्रिय सार दीपिका में ये वानप्रस्थ संस्कार आपको नहीं मिलेगा, और विद्यारंभ संस्कार उसमें नहीं लिखा गया है, पर कहीं ना कहीं हमारे वैष्णव में भी ये परंपरा है और हम लोग कराते हैं, ठीक है। उनकी जगह 2-3 और इसमें उप संस्कार में लिखा गया है। शोषयंती होम, पौष्टिक कर्म और मुंडन संस्कार, ये भी संस्कारों में आते हैं। इसमें और एक नाम हम जोड़ना भूल गए, मूर्धन संस्कार, यानी बालक के सिर को सूंघना, उसका भी एक संस्कार होता है। वो खैर मैं समय पे आदमी पर बताऊंगा आपको। शोषयंती होम, पौष्टिक कर्म और मुंडन संस्कार, और उसी के साथ में हम मूर्धन संस्कार भी कहते हैं। मूर्धन मतलब, मूर्ध मतलब होता है यह माथा, उसको सूंघना, तो उसको मूर्ध संस्कार कहते हैं।